السلام علیکم دوستوں، میرا نام فیضان تنویر ہے۔ ویلکم کرتا ہوں ایک اور شاندار ویڈیو کے اندر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جن بچوں نے 9th کلاس کے اندر ایگزامز دیے، ٹھیک ہے، اور ان کا رزلٹ آیا، ان کی محنت کے لیے آپ کے سامنے کچھ شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے، حاصل انہیں ہی ہوتی ہے منزل، جو وقت اور حالات پر رویا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے بڑا سلیوٹ، بڑی کنگریچولیشنز ان سب بچوں کے لیے جن بچوں نے 9th کلاس کے انت تک محنت کر اس کے بورڈ ایگزامز دیے اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ آ چکا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے بچے اس طرح کے ہوں گے جنہوں نے کافی زیادہ محنت کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ان کی مرضی کے مطابق مارکس نہیں ملے۔ یہ ایک الگ سے ڈسکشن ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں کو پتا تھا کہ یار میرے اتنے نمبر آئیں گے، میں نے اتنی محنت کی تھی اور مجھے اس کا اچھا خاصا رزلٹ مل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں وہ تو کبھی کم نہیں ہوتی، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سے زیادہ نمبر آتے، اس سے زیادہ نمبر آتے، لیکن یہاں پر ایسے بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے اچھا ایگزام دیا، واقعی انہوں نے سارا سال اچھی محنت کی تھی، لیکن ان کو ان کے ایفرٹ کے مطابق مارکس نہیں ملے۔ اب وہ بچے سب سے زیادہ ڈسکریج ہوئے ہیں 10th کلاس کے حوالے سے کہ اب وہ کیا 9th کلاس کو پریپیئر کریں یا 10th کلاس کو پریپیئر کر آگے چلیں۔ تو آج کی ویڈیو انہی سب دوستوں کے لیے ہے، ان کو تھوڑا سا میں موٹیویٹ کروں گا، ساتھ کچھ گائیڈنس دوں گا، کچھ اسٹریٹجیز بتاؤں گا جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کے 10th کلاس کے اندر اچھا پرفارم کرنے کے لیے اور 9th کلاس کے جو مارکس ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میری وہ جو پریویس ویڈیو جس میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ لوگوں نے 9th کلاس کے بورڈ ایگزامس کو ریچیک نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کے بعد سے بہت سے بچوں کے ایسے کمنٹس آئے کہ جن بچوں نے پورا ایگزام دیا تھا لیکن ان کو تب بھی 25 30 35 37 مارکس آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچے کیا کریں۔ تو ان کے لیے آج کی اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ اسٹریٹجی بتانے والا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بہت کچھ سیکھ کر جانے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں اگر آپ کے پاس فری ٹائم موجود ہے تب اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، ورنہ اسکپ کر دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ تو جب بھی آپ 10th کلاس کے اندر آفیشیلی آ چکے ہو، آپ کے 9th کلاس کے رزلٹ آ چکا ہے، وہ ایک بالکل سائڈ پر ہو چکا ہے۔ اب 10th کلاس کے اندر آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، یہ پروف کرنا ہے کہ 9th کلاس کے اندر بھی میں نے محنت کی تھی اور 10th کلاس کے اندر بھی میں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل جب بھی آپ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا، میں نے جتنی محنت کی تھی اب آگے میں محنت نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ بہت سے بچے انڈر کانفیڈنس میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے بچے اپنے آپ سے یہ کوسچن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت 9th میں کی تھی لیکن مجھے رزلٹ نہیں ملا، تو مجھے 10th میں محنت کرنے کا کیا فائدہ۔ تو اس طرح کے فضول ترین جو آپ کے پاس خیالات ہیں وہ آپ نے اپنے دماغ سے نکال کے باہر پھینک دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل بھی آپ تھے، آج بھی آپ ہو، کل بھی آپ ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ایکشنز کو آپ نے کم نہیں کرنے دینا آپ کی جو ریزلٹس ہے، ٹھیک ہے۔ ریزلٹس کے کریٹر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ معلوم ہے آپ سے کہ آپ کی جو رزلٹ ہے، جب کہ آپ نے جتنی محنت کی تھی آپ کو اس کا جو نتیجہ اتنا نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بیک اپ میں سٹور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بھر کر چھپڑ پھاڑ کر ملنے والا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی محنت کو روکنا نہیں ہے اور ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب 10th کلاس کے اندر جب آپ لوگ نئے آ گئے ہو، ٹھیک ہے، 10th کلاس آپ لوگوں نے کافی کچھ چیپٹرز پڑھ لیے ہوں گے، اب آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے آپ لوگ 10th کلاس جو پڑھ رہے تھے ابھی تک آپ کا رزلٹ نہیں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تب تو آپ رینڈملی ایک نارمل پڑھ رہے تھے، لیکن اب آپ کا رزلٹ آ چکا ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ میری غلطیاں کہاں پر ہیں، کہاں سے میں ویک کر رہا تھا، کیا میرے ویک پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کن پر مجھے زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا میرا آبجیکٹیو ٹائپ میں مجھے مسئلہ آیا، مجھے سبجیکٹیو ٹائپ میں مسئلہ ہے۔ اب آپ کے نمبر جتنے مرضی کم ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے مطابق نمبر نہیں ملے، لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ نے 9th کلاس کے فلاں ایگزام کے اندر کیا غلطی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ نے یہ دماغ میں سوچنا ہے، کیونکہ اب آپ 9th کلاس کراس کر رہے ہو، آپ کو ایک چھوٹا سا پیس آف ایکسپیرینس مل چکا ہے، اب آپ اس کو اپنے اگر چھوٹوں کو بتاؤ گے کہ یار تم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلطیاں آپ لوگوں نے خود بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یار یہ غلطیاں آپ نے 9th کلاس کے اندر کی تھی، یہ کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے، ان کو اس سال کور لازمی سے کرنا ہے، اور باقی چیزیں تو بتانے کے لیے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں ہی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو روڈ میپ بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اب 10th کلاس کے اندر تھوڑا سا کیلکولیشن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیلکولیشن میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو کروانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف ہمارے پاس یہاں پر 9th کلاس ہے اور ایک طرف آپ کے پاس 10th کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر میں کیونکہ یہاں پر ایوریج بچوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بچوں کے نمبر میں بھی زیادہ ہوں گے، کچھ کے مزید کم ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک جنرل سی بات کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ 9th
क्लास का जो एग्जाम है हम ये समझते हैं कि वो 500 में से, क्योंकि साइंस वालों की जो कंप्यूटर साइंस होती है उसके अंदर 495 और जो बायो वाले होते हैं उनके अंदर 505, तो मैंने एक 20 वाला नंबर लिया है जो कि 500, ठीक है। 10th का भी कितना होगा 500, ये दोनों हो जाएंगे 1000। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल के कुछ मार्क्स आएंगे जो कि होंगे हमारे पास 100 मार्क्स, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा ही होते हैं लेकिन हम एक छोटी सी रफ सी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो 300 से लेकर 400 के दरमियान में मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हम एक रैंडम सा नंबर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ले लेते हैं 350, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के पाकिस्तान के अंदर 300 से 400 के दरमियान में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब 350 मार्क्स हो गए आपके जो आपके 9th क्लास के अंदर इस टाइम आए हैं, ठीक है। 100 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल्स, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल देना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर थोड़ी सी मेहनत करने से आपके 100 मार्क्स यानी कि पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं कि आपको यहाँ पर 100 मार्क्स जो है वो पूरे मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास 450 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब हमें 450 मार्क्स हमारे पास हो गए हैं। अब आपने ये देखना है कि आपको 10th क्लास के अंदर कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। विद रियलिस्टिकली आपने देखना है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स कंसीडर कीजिए। अब मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि अच्छे मार्क्स और बुरे मार्क्स की क्या डेफिनेशन है। तो बुरे मार्क्स मेरे मुताबिक आज की डेट के अंदर 2022 और 2023 के टाइम के अंदर जो आपके बुरे मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 800 से कम आते हैं, ठीक है, तो वो कंसीडर किए जा सकते हैं एक बुरे मार्क्स के अंदर, क्योंकि आज की डेट में जितना कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। 800 मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होती किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर, ठीक है, और वो आपको इतनी हेल्प नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो हम ये सपोज करते हैं कि अगर आपके मार्क्स 800 से ज़्यादा आ जाएं तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सेफ जोन में जा सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप जानते हैं कि कोई भी यहाँ पर बैरियर नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल, ठीक है। हर बच्चा यहाँ पर तकरीबन पास हो सके अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। उसको फैमिली में वो किसी को अपने मार्क्स खुल कर प्राउडली बता सके, ठीक है। तो 450 में से अगर हम रफ से एस्टिमेशन लगाएं तो अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट 400, ठीक है, जो कि इससे इंशाल्लाह ज़्यादा ही आएंगे अगर आप लोग मेहनत करोगे, लेकिन हमने एक छोटी सी वैल्यू ली है कि अगर 450 प्लस आपके यहाँ पर ये वाले मार्क्स दोनों ऐड हो जाएं, ठीक है, तो ये कितने मार्क्स बन जाएंगे आपके पास 850 मार्क्स बन जाएंगे। तो 850 मार्क्स ऐसे मार्क्स हो सकते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके आप प्राउडली बता सके और आपको कहीं ना कहीं हेल्प लाजमी से करेंगे, ठीक है। हाँ, इससे अगर कम नंबर होंगे तो वो सोचने का मुकाम बन जाता है कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो आपके अब 400 मार्क्स लेना ये, क्योंकि ये मार्क्स अब आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, इसका रिजल्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। जो आपके हाथ में चीज़ है वो है यहाँ पर ये वाले मार्क्स, ठीक है। 400 मिनिमम मार्क्स लेना अपने 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब 450 अगर हम लोग ये बात करें, अब मैं यहाँ पर किसी को भी ब्रेक्स नहीं लगा रहा हूँ कि आपने 400 मार्क्स ही लेने हैं, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 400 से कम नंबर लोगे तो आपको कोई यहाँ पर आके पकड़ कर ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक क्लियर आपके सामने गोल होना चाहिए कि यार मैंने अब क्या अचीव करना है, ठीक है। बहुत से बच्चों को 10th क्लास के अंदर पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, अचीव क्या करना है। तो मैंने आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया है कि 400 मार्क्स लेना आपके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब 400 मार्क्स लेने कैसे हैं, अब उस बात पर आते हैं। अब 10th क्लास का अब जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, अब आपको 9th क्लास से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप लोगों ने किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। उनमें से कुछ बातों पर हम जल्दी से नज़र डालते हैं ताकि आप लोगों को मैं क्विक रिवीजन बता सकूँ, कुछ स्ट्रेटजीज बता सकूँ जो कि आपकी 10th क्लास की प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है हमारे पास, अगर मैं यहीं पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर कि अब सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने आप से सीरियस होना है, ठीक है। सीरियस होना आपके लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया है कि रिजल्ट आने से पहले आप एक टिपिकल बच्चे की तरह पढ़ रहे थे, अपना सब जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे थे, लेकिन अब आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आप जानते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर मुझे प्रॉब्लम आई है, किस सब्जेक्ट के अंदर मेरे नंबर कम है। अब उस सब्जेक्ट को पकड़ने की बारी है कि अगली मरतबा 10th क्लास के अंदर मेरे मुझे उतने मार्क्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अपने आप से, अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10th भी हाफ होने वाली है बहुत से बच्चों की, ठीक है। तो अब आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अपने माइंड को अपने बार बार ट्रेन करते रहना कि यार अब मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आप लोगों ने करनी है वो ये है, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने स्केड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि उससे पे स्टिक होना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर टाइम टेबल
के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो सीरियस होने के साथ अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने टेस्ट की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा कर देनी है, ठीक है। वो टेस्ट आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो सकते हैं, वो टेस्ट आपके मंथली टेस्ट हो सकते हैं, वीकली टेस्ट हो सकते हैं, हाफ ईयर हो सकते हैं, मिड टर्म हो सकते हैं या प्री बोर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि जितने आप टेस्ट ज़्यादा दोगे उतनी तैयारी आपकी अच्छी होगी, जितनी रिवीजन आप ज़्यादा करोगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। 9th क्लास के अंदर मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने जितने टेस्ट दिए हैं वो काफ़ी कम है ऑन एवरेज, ठीक है। तो इस साल आपने उन टेस्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिपीट करते रहो। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप लोग किसी एकेडमी के अंदर जा रहे हो कि स्कूल के टेस्ट अलग हैं, एकेडमी के टेस्ट अलग है, चलो मैं किसी एक पर फोकस कर देता हूँ, वो करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप स्कूल और एकेडमी दोनों के टेस्ट को किसी तरह मैनेज कर लेते हो तो यार एक छोटी सी बात आप सुन लो, छोटे बहन भाइयों आप मेरे, ये कड़वा घूंट है, ठीक है। एक दवाई कड़वी ही होती है लेकिन उसके जो आउटकम्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दवाई खा लेते हो, ठीक है, ये कड़वी जो आपने स्कूल भी मैनेज करना है, अपने एकेडमी के टेस्ट भी मैनेज करने हैं, जो भी है, ठीक है, अगर आप इसको एक बार यहाँ से पास ऑन हो जाते हो ना तो आप यकीन मानो जब आप वापस मुड़कर देखोगे ना तो आपको बहुत सी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं। आगे बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको आपने सर करना है, ठीक है। तो ये आपकी जो मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि आपको लगता है मुश्किलात है, आप अब मेरे से पूछोगे तो 9th 10th को पास करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप लोग बेबी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर क्रिएट हो सके, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो कि इस टाइम 9th 10th के अंदर मौजूद है। लेकिन क्योंकि हम लोग 9th 10th पढ़ के आ चुके हैं, हम लोग अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है। तो अब यहाँ पर जो मेन यहाँ पर चीज़ आती है वो यही है कि जब आप लोग भी यहाँ से पास कर जाओगे तो आप लोगों को भी ये बच्चों वाली चीज़ें लगेगी। लेकिन अभी आप लोग क्योंकि उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हो, उस सिस्टम के अंदर मौजूद हो, तो अभी आपको इसको फील करना पड़ेगा और इसको पास ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इस साल आपने अपनी प्रेजेंटेशन पर काफ़ी फोकस करना है, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चों ने, मैं जानता हूँ कि प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मैंने इस साल आपके 9th क्लास के टाइम पर प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा आप वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, ठीक है, और ज़्यादा आपको बताया नहीं है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ ही कुछ देखी होंगी। तो इस साल मैं क्या करने वाला हूँ, जब आपके 10th क्लास के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर प्रेजेंटेशन की वीडियोज़ लेकर आऊँगा, कुछ कोर्सेज भी साथ लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक छोटी सी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो बच्चे ये कहते हैं कि प्रेजेंटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, हमने जो लिखा है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एक छोटी सी बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप किसी शूज़ों वाली दुकान पर जा रहे हो, ठीक है, और बाहर से वो दुकान काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी लग रही है, बहुत ओल्ड लग रही है, लेकिन बेशक अंदर काफ़ी अच्छे महंगे महंगे बूट्स पड़े होंगे, तो क्या आपका दिल करेगा उस दुकान पर जाकर चीज़ लेने को? नहीं करेगा, क्योंकि अब इसको बिल्कुल ये समझे कि दुकान की जो बाहर डेकोरेशन है वो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है, और जो अंदर शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं वो आपका मटीरियल है जो कि आपने एग्जाम के अंदर लिखा है। तो एग्जामिनर को वो मज़ा नहीं आएगा वो पेपर को चेक करने का, वो अच्छे तरीके से चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ आंखें बंद कर ये समझ सकते हैं, वो बस टिक क्रॉस करता रहेगा। तो बजाय इसके कि अगर आप एक ऐसी दुकान की जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी कर दें, खूबसूरत कर दें, फूल बूटे थोड़े से बनाएं या थोड़ी अच्छी एक मुनासिब डेकोरेशन करें, अंदर बेशक शूज़ ख़राब भी हो, कम से कम कस्टमर अंदर आकर देखना ज़रूर चाहेगा। तो यही चीज़ आपकी एग्जाम्स के पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर होती है। अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, बाकियों से डिफरेंट है, तो एग्जामिनर की जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाएगा आपका पेपर, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेपर वो लीनियटली चेक करेगा, आहिस्ता आहिस्ता चेक करेगा, और वो आपके बगैर मतलब हर चीज़ को डिटेल में नहीं करेगा, वो सिर्फ ऊपर से टिक वगैरह लगाएगा, ठीक है। तो चांसेस प्रेजेंटेशन की वजह से बढ़ जाते हैं आपके ज़्यादा नंबर लेने के। तो जो बच्चे ये कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको मैं ये डायरेक्ट सिंपल और सादा अल्फाज में आंसर दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन से फ़र्क पड़ता है। प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं होते, लेकिन ये उन जो आपके नंबर आपने लेने हैं उस पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपने करनी है, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने आपको बोली हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियस होना है, टेस्ट आपने अच्छे देने, और लास्ट चीज़ मैंने आपको बोली है कि आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपका भाई आपके साथ मौजूद है, आपके 9th क्लास के अंदर भी आपके साथ मौजूद है, 10th के अंदर भी आपके साथ मौजूद है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, नीचे व्हाट्सएप का जो लिंक मैंने इसीलिए दिया है कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर मुझसे आप चीज़ें पूछ सको, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।